In this class, we'll study about the plant breeding for different type of resistances. In the previous classes, we had seen that plant breeding was done with specific purposes of disease resistance, insect resistance, environmental resistance, and high yield. So we had already seen how high yield varieties were made like rice and wheat. So in this class, we will be studying about the plant breeding for specific purposes like pest or disease resistance. So the first thing that we have to understand that diseases can cause significant loss, very significant loss to farmers. So किसानों को एटलीस्ट अगर किसी भी खेत में बीमारी फैल जाता है तो वहां पर 20 से 30% अप्रोक्सीमेटली क्रॉप लॉस हो जाता है. बट समटाइम्स इट कुड ऑल्सो बी पॉसिबल दैट ऑलमोस्ट द होल क्रॉप इज लॉस्ट ड्यू टू डिजीजेस. So the diseases are a real notorious event that occurs that in the crop fields. So diseases के प्रति जो resistance होता है that is very much beneficial to the plant. सो हमने इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स भी पढ़ने हैं और उनके नाम भी पढ़ने. एनसीईआरटी में एक टेबल दिया हुआ है जिसमें पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स के वेराइटीज, फॉर एग्जांपल वीट का हिमगिरी है, फिर काउपी का पूसा कोमल है, चिली का पूसा सदाबहार है. सो यू हैव टू रिमेंबर दैट टेबल राइट फ्रॉम द एनसीईआरटी. आई वोंट बी डिस्कसिंग दैट टेबल हियर बिकॉज इट इज अ क्रैश कोर्स क्लास and you have to remember that table directly from the NCERT. I will be just mentioning here the brief diseases which are common. Bacterial diseases, for example, rot of crucifers. So crucifers are the members of Cruciferaceae families. So that it occurs that their stems or the roots start rotting because of some bacterial diseases, and also we have to study a bit of viral diseases. Viral diseases include chili mosaic, turnip mosaic,
So these diseases have been briefly mentioned in the NCERT. So after this, there is a table of those diseases, the disease resistant crops and their normal names. You have to remember it from there only. So this is about disease resistance. Now we'll understand the second point, that is normal plants need lots of chemicals to remain disease free, but these plants have their inbuilt mechanism of रेजिस्टेंस टुवर्ड डिजीजेस, दैट इज उनके जीन्स में वो प्रॉपर्टीज होते हैं जिससे कि वो डिजीज के प्रति रेजिस्टेंट हो जाते हैं. नाउ विल सी अबाउट पेस्ट रेजिस्टेंस. So pests are basically those insects which eat the leaves or the stems or the flowers of or the roots of the plants. So those are collectively called as pests, and lots of pests are real nuisance to crops. We will have to see their examples. So these are the common varieties of crops and this is their modification, यानी कि प्लांट ब्रीडिंग से कॉटन में लीव्स को हेयरी कर दिया गया जिससे कि जेसिड्स अटैक नहीं कर पाते हैं. लाइकवाइज हेयरी लीव्स वीट में लीफ बीटल्स को अटैक नहीं करने देता है. लाइकवाइज कॉटन में अगर नेक्टर ना हो, नेक्टर इज दैट स्वीटिश और फ्रूटी सब्सटेंस विच इज फाउंड एट द बेस ऑफ द फ्लावर विच इंसेक्ट्स सक, तो अगर कॉटन में नेक्टर ना हो तो वहां पर कॉटन बॉलवॉर्म्स नहीं आते हैं. अदरवाइज अगर वीट में जो नॉर्मल स्टेम होता है वो हॉलो होता है, अगर सॉलिड स्टेम हो तो जो बोरर होते हैं, बोरर्स आर इंसेक्ट विच बोर इनटू द स्टेम, तो वो बोर नहीं कर पाएंगे यानी कि उसके अंदर होल नहीं कर पाएंगे. लाइकवाइज अगर मेज के अंदर हाई एस्पार्टिक एसिड है और लो नाइट्रोजन है और शुगर कंटेंट मेज में कम है तो वहां पर भी शूट बोरर्स नहीं आएंगे कि बिकॉज अगर उनमें शुगर नहीं है तो जनरली इंसेक्ट्स वोंट बी अट्रैक्टेड. सो इस मेथड से हमें प्लांट्स में जो रेजिस्टेंस होता है टुवर्ड्स द पेस्ट ऑब्टेन होता है. अपार्ट फ्रॉम दैट इसके बाद एनसीईआरटी में एक 3 का टेबल दिया हुआ जिसमें एफिड्स जेसिड्स से रेजिस्टेंस दिया गया है in brassica and also there are other insect pests like the fruit and shoot borers. So these were the normal tables in the NCERT and you have to study the table of this part and also of this part directly from the NCERT. I am not discussing that over here because it is a crash course class.
Now we'll study mutation breeding. So in chapter 5 we had studied mutation in detail. So it is the same mutation that is occurring over here. That is, mutation is the change in the base sequence of DNA. So why it is being done over here? To introduce new varieties or new genes. सो नॉर्मली क्या होता है कि प्लांट्स में जितने भी जीन्स हैं वो तो कांस्टेंट होते हैं, यानी कि अगर हमने जो जर्म प्लाज्म कलेक्शन पढ़ा था पिछले क्लास में, उन सारे जर्म प्लाज्म कलेक्शन के बाद भी हमारे पास उतने ज्यादा डिजायरेबल जीन्स नहीं है, तो हम क्या करेंगे? वी विल क्रिएट न्यू जीन्स और वी विल फॉर्म न्यू कैरेक्टर्स। तो वो कैसे हम लोग फॉर्म कर सकते हैं? वी कैन फॉर्म दैट थ्रू म्यूटेशन, बिकॉज म्यूटेशन हैज द एबिलिटी टू लीड टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू जीन्स और न्यू कैरेक्टर्स. So now if we want a certain character in a plant and that character is not present in the germ plasm, so in that case we will do mutation in certain genes which will result in the formation of those characters. So this is why mutation is done. If we have to study the examples of this, सो यहाँ पर म्यूटेशन से हमने देखा कि न्यू कैरेक्टर्स या न्यू जीन्स क्रिएट हो सकते हैं.
तो न्यू जीन्स जो क्रिएट होंगे वो कैसे कैसे जीन्स होंगे जो कि हम चाहते हैं कि उस तरह के जीन्स आए जो कि उस प्लांट में इंट्रोड्यूस होके नए कैरेक्टर को फॉर्म करें। फॉर एग्जांपल मूंग इज अ बीन, इसमें जो येलो मोज़ेक वायरस के प्रति जो रेजिस्टेंस था वो कैसे आया? थ्रू म्यूटेशन। और कौन सा पेस्ट था? दैट वाज पाउडरी माइल्ड्यू। So likewise, Ameloboschus esculentus is a variety of भिंडी, that is okra, and उसमें जो येलो मोज़ेक वायरस के प्रति रेजिस्टेंस था वो कैसे आया? तो इसी का एक वाइल्ड रिलेटिव होता है। वाइल्ड रिलेटिव का कौन सा है? दैट इज Ameloboschus manihotland। ये इसका जो है वाइल्ड रिलेटिव है, इसके जीन्स को इंट्रोड्यूस किया गया इसके अंदर और उससे एक नया वैरायटी बना, दैट इज कॉल्ड एज परभानी क्रांति। सो दिस वाज हाउ परभानी क्रांति वाज क्रिएटेड एंड इट इज रेजिस्टेंट टू येलो मोज़ेक वायरस। सो म्यूटेशन के थ्रू न्यू कैरेक्टर्स या न्यू जीन्स फॉर्मेशन हो सकते हैं और उन्हीं जीन्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा उन स्पीशीज में जिनमें हम करना चाहते हैं। नाउ प्लांट ब्रीडिंग फॉर improve full crop quality। सो यहाँ पर हमने पढ़ना है कि अभी तक तो हमने देखा कि डिजीज रेजिस्टेंस, पेस्ट रेजिस्टेंस और हायर यील्ड कैसे आया था। नाउ यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो क्रॉप क्वालिटी को इंप्रूव करना है, यानी कि हम चाहते हैं कि जो हम लोग ग्रेन्स या सीरियल्स या पल्सेस खा रहे हैं उसमें वो सारे अमीनो एसिड्स, वो सारे विटामिन, मिनरल्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स हो जो कि हमारे बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है। यानी कि हम फूड का यहाँ पर क्वालिटी इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर फूड में जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स इंप्रूव हो जाए। सो उसके एग्जांपल्स हमें पढ़ने हैं। यहाँ पर वर्ल्ड में अप्रोक्सीमेटली 840 मिलियन, दैट इज 84 करोड़ लोगों को प्रॉपर अमाउंट में खाना नहीं मिलता और 3 बिलियन को क्या होता है कि बैलेंस डाइट, अमाउंट में तो मिल रहा है खाना उन्हें बट उनमें सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, तो उनमें न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। न्यूट्रिएंट्स की कमी से हमारा ब्रेन, हमारा बॉडी का जो नॉर्मल फंक्शन है वो काफी रिड्यूस हो जाएगा और हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम भी वीक हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे बॉडी में विटामिन सी कम हो तो इम्यून सिस्टम कम हो जाएगा, मैग्नीशियम कम हो तो डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए का जो ट्रांसक्रिप्शन होता है उसमें दिक्कत हो सकता है। लाइकवाइज बहुत ज्यादा अलग अलग न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ना, उनकी अगर कमी से बॉडी में अलग अलग रिएक्शंस हैम्पर हो जाएंगे। सो अल्टीमेटली वी वांट ऑल दोज न्यूट्रिएंट्स, स्पेशली द माइक्रोन्यूट्रिएंट यानी कि विटामिन्स और मिनरल्स। तो हम लोग क्या कोशिश करेंगे कि जो क्रॉप्स हो उनमें विटामिन्स और मिनरल्स ज्यादा हो। उसके कुछ एग्जांपल्स हमें देखने हैं।
ये जो तीन हैं ये इंडिया के बाहर में किए गए थे, दैट इज लाइसिन और आर्जिनिन अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि मेज में कम होते हैं। इनको इंप्रूव करके मेज में इनका कंटेंट बढ़ाया गया। लाइकवाइज आयरन में, राइस में आयरन कम होता है तो आयरन को इंप्रूव किया गया। लाइकवाइज प्रोटीन को इंप्रूव किया गया। एटलस 66 गेहूं का एक वेराइटी है इसके अंदर। अब यहाँ पर हमारे दिल्ली में एक इंस्टीट्यूट है, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसने भी काफी कंट्रीब्यूशन किया है। इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि दिल्ली में लोकेटेड है, उसने बहुत सारे अलग अलग स्पीशीज पे काम किया है और उसने प्रोटीन्स को बढ़ा दिया है बीन्स में और पीज में। अपार्ट फ्रॉम दैट विटामिन ए का कंटेंट कैरेट्स में बढ़ा दिया गया है। लाइकवाइज कैल्शियम को बढ़ा दिया गया है स्पाइनच और बथुआ में। बथुआ इज अ साग। इसके अलावा और भी फीचर्स है जैसे कि विटामिन सी को बढ़ा दिया गया है बिटर गार्ड में। तो ये सारे एग्जांपल्स एनसीईआरटी में है, यू हैव टू स्टडी इट डायरेक्टली फ्रॉम देयर, बट आई हैव जस्ट मेंशन्ड हियर अ फ्यू एग्जांपल्स। जब भी किसी क्रॉप के अंदर किसी न्यूट्रिएंट का अमाउंट बढ़ा दिया जाता है तो दैट इज कॉल्ड एज बायोफोर्टिफिकेशन, दैट इज इंप्रूवमेंट इन द न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ फूड, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज बायोफोर्टिफिकेशन। सो इन क्रॉप क्वालिटी these come under biofortification. Ultimately what we have done here, we have just improved the quality, that is the nutritional component, and that nutritional component increase is called as biofortification. Now we also have to understand something called single cell protein. So now we'll study about single cell proteins. So the name is not 100% correct because यहाँ पर multicellular organisms की भी use की जाएगी. So first of all let's see what it is.
सो नॉर्मली जो क्रॉप्स या फील्ड में उगाए जाते हैं उनमें क्या होते हैं, वेजिटेबल्स, पल्सेस, फ्रूट्स एंड सीरियल्स, सीरियल्स दैट इज अनाज, फल, सब्जी एंड दाल। तो ये सारे जनरली उगाए जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट नॉन वेजिटेरियंस के लिए चिकन, मटन एंड फिशेस एंड अदर थिंग्स ऑल्सो होते हैं विच आर नॉर्मली रियर्ड इन अ पॉन्ड और ऑन लैंड। सो उन सबों को मिला करके ह्यूमन पॉपुलेशन का जो फूड रिक्वायरमेंट है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। तो उसका रीज़न बहुत ज़्यादा है। एक तो आज के डेट में जो हमारे जो भी एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज है उनमें प्रेशर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लोगों ने वेजिटेरियन खाने से नॉन वेजिटेरियन खाने पे स्विच किया है काफ़ी ज़्यादा। यानी कि नॉन वेजिटेरियन फूड जो होता है वो इन्वायरमेंट के लिए बहुत बेनिफिशियल नहीं होता है, बट इट पुट्स एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज, बिकॉज 1 किलो चिकन के लिए या 1 किलो मीट के लिए यू नॉर्मली हैव टू स्पेंड 3 to 8 और 3 to 10 किलोज ऑफ ग्रेन्स। सो अगर अब 3 to 10 किलो ऑफ ग्रेन कोई भी ह्यूमन डायरेक्टली कंज्यूम करे तो वो काफी ज्यादा एफिशिएंट होगा एज कंपेयर टू 1 किलो चिकन विच इज बीइंग यूज्ड टू प्रोड्यूस विच इज हैज बीन प्रोड्यूस्ड थ्रू 3 to 10 किलो ऑफ ग्रेन्स। सो यहाँ पर जो हमारे नॉन वेजिटेरियन ईटिंग प्रैक्टिसेस हैं, दीज आर पुटिंग एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन द एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज। तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं और कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी, तो इनमें क्या होता है कि ये प्रोटीन बहुत तेजी से बना सकते हैं। सो एंड ऑल्सो देयर कंटेंट इज लो इन फैट्स, यानी कि ये बहुत अच्छे क्वालिटी का प्रोटीन बना सकते हैं और अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स सब कुछ फॉर्म कर सकते हैं। सो दैट इज व्हाई दीज आर रियली बेनिफिशियल। इन शॉर्ट में इन्हें हम SCP कहते हैं। सो SCPs क्या होते हैं कि ये जो बहुत ही अच्छे क्वालिटी के प्रोटीन फॉर्म करते हैं और उनमें फैट्स बहुत कम होता है, लाइकवाइज विटामिन्स बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि इनमें जो न्यूक्लिक एसिड्स यानी कि DNA RNA का कंटेंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको रिमूव किया जाता है, अदरवाइज इट कुड बी ईटन। और यहाँ पर जो ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनको बहुत ही ईजिली ग्रो किया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ वेस्ट वाटर, दैट इज पोटैटो प्लांट से जो वेस्ट वाटर निकलता है उससे, या फिर मोलासेस से, या फिर अदर जो एग्रीकल्चरल वेस्ट होता है उस पे भी इसको ग्रो किया जा सकता है। अब इनके एग्जांपल्स हमें पढ़ने हैं, एग्जांपल्स ऑफ SCPs। SCPs के एग्जांपल्स जो होते हैं वो सबसे कॉमन एग्जांपल है बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया में मिथाइलोफाइलस मिथाइलोट्रोफस, then we have cyanobacteria और blue green alga। इसके एग्जाम्पल है स्पाइरुलिना,
देन वी हैव यीस्ट, इसके एग्जाम्पल है कैंडिडा, यूटिलिस, एंड ऑल्सो वी हैव फिलामेंटस फंजाई। एग्जाम्पल फ्यूजेरियम, ये चारों कॉमन टाइप्स के सिंगल सेल प्रोटीन्स है, यानी कि मिथाइलोफाइलस, मिथाइलोट्रोपस, पाइरुलिना हमारे एनसीईआरटी में भी है, और ये दोनों बहुत ही कॉमन टाइप के एससीपीज होते हैं। अब ये सारे जो ऑर्गेनिज्म से काफी इजीली ग्रो करेंगे, बहुत ज्यादा प्रोटीन बनाएंगे और अच्छे क्वालिटी का प्रोटीन बनाएंगे, बहुत ज्यादा विटामिन का सिंथेसिस करेंगे और उनमें फैट्स का कंटेंट कम होगा। तो ये सारे बहुत बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स है। एक एस्पेक्ट ये है कि इन्हें प्रोसेसिंग की जरूरत होगी क्योंकि इसमें एक्सेस न्यूक्लिक एसिड्स होंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर सिंगल सेल्ड प्रोटीन्स। नाउ वी विल कम टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एंड दैट इज टिश्यू कल्चर। So this is the last topic of this chapter and it is called as tissue culture. So culture means production of cells or multiplication of cells in laboratory. Here plant cells will be cultured in the laboratory. So first of all we have to understand what is tissue culture. So tissue culture is the culturing of plant cells in laboratory using nutrient sources like sugar sources like sucrose and also hormones like cytokinin, gibberellins, auxins and abscisic acid, and these hormones are used in this case, and others like the molasses or the agar-agar solution or those things are used in this case. सो टिश्यू कल्चर में फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे चैप्टर में इस टॉपिक का जो मेन सिग्निफिकेंस है वो ये है कि कैसे टिश्यू कल्चर से हम लोग नए नए प्लांट्स को क्रिएट कर सकते हैं. सो दैट इज कॉल्ड एज माइक्रो प्रोपेगेशन. सो माइक्रो प्रोपेगेशन क्या है? टिश्यू कल्चर की मदद से बहुत ज्यादा प्लांट्स को बहुत शॉर्ट टर्म में क्रिएट करना, दैट इज कॉल्ड एज माइक्रो प्रोपेगेशन. नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ माइक्रो प्रोपेगेशन.
So the first step is taking explant or explant collection. सो पूरे प्लांट का कोई भी पार्ट जो कि लैब में कल्चर किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सप्लांट. नाउ दिस विल बी कल्चर्ड सबसे पहले एक्सप्लांट लिया गया प्लांट से, उसके बाद उस एक्सप्लांट से कल्चर किया गया, दैट इज न्यू मास ऑफ सेल्स क्रिएट किया गया. और न्यू मास ऑफ सेल्स को हम क्या कहते हैं? कैलस. कैलस इज अनडिफरेंशिएटेड सेल, यानी कि इन सेल्स में डिफरेंशिएशन नहीं है कि ये रूट का सेल है या लीफ का सेल है या फ्लावर का सेल है या स्टेम का सेल है. तो यहां पर अनडिफरेंशिएटेड सेल को अब हम चाहते हैं कि न्यू प्लांट्स क्रिएट करें, तो उससे क्या होगा कि हम उसके लिए क्या करना होगा कि ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन्स ऐसे ऐसे हार्मोन्स को दिया जाएगा उसको, जिससे कि कैलस के अंदर रूट्स एंड शूट्स डेवलप होंगे. और वो जो कैलस है उसको अलग अलग कंपार्टमेंट में पहले डिवाइड किया जाएगा और उसके बाद हर एक कंपार्टमेंट में ये सारे हार्मोन्स दिए जाएंगे. तो इससे क्या होगा? रूट एंड शूट का फॉर्मेशन होगा. तो जब उनमें रूट और शूट्स आ जाएंगे तो उनको क्या बोलेंगे? प्लांटलेट्स बोलेंगे, नॉट प्लांट्स. तो ये प्लांटलेट्स को फिर कहां से कहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा? तो लैब में से जो एक्चुअल फील्ड जहां पे इसे ग्रो करना है वहां ट्रांसफर किया जाएगा. तो हमने क्या देखा कि प्लांट के एक छोटे से पार्ट से, यानी कि किसी भी सेल से पूरे प्लांट का क्रिएशन हो सकता है ना. दिस इज टर्म्ड एज टोटीपोटेंसी. सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टोटीपोटेंसी. यानी कि प्लांट के एक सेल से पूरे प्लांट का क्रिएशन हो गया. दिस इज टर्म्ड एज टोटीपोटेंसी. नाउ माइक्रो प्रोपेगेशन से जो सारे प्लांट्स क्रिएट हुए, यहां पर कहीं भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हुआ है. यानी कि जो भी प्लांट्स क्रिएट होंगे टिश्यू कल्चर में या माइक्रो प्रोपेगेशन से, वो सारे प्लांट्स एक दूसरे के क्लोन्स होंगे. दोज वुड बी आइडेंटिकल एंड देयरफॉर दोज वुड बी कॉल्ड एज सोमा क्लोन्स.
सोमा क्लोन्स का मतलब क्या हुआ कि जो भी प्लांट्स यहाँ बन रहे हैं वो सारे एक दूसरे से आइडेंटिकल होंगे, बिकॉज सब तो अल्टीमेटली एक ही सेल से आए हैं, यानी कि यहाँ पर बीच में कहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हुआ नहीं, तो वेरिएशंस तो होंगे नहीं, तो सारे प्लांट्स एक दूसरे से सिमिलर होंगे, सेम होंगे, आइडेंटिकल होंगे, तो लाइकवाइज दे आर कॉल्ड एज सोमा क्लोन्स। नाउ देयर इज अ स्मॉल टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में कि अलग अलग स्पीशीज के सेल्स को ही कंबाइन कर दिया गया, यानी कि नॉर्मल सोमैटिक सेल्स को ही कंबाइन कर दिया गया, नॉट देयर एग न्यूक्लियस और मेल गैमेट, यहाँ पर दो डिफरेंट सेल्स को ही कंबाइन कर दिया गया। तो कंबाइन करने से पहले सबसे पहले क्या होगा, उसके सेल वॉल को डाइजेस्ट करना पड़ेगा, तो सेल्यूलेज एंजाइम की जरूरत है। उसके बाद कैल्शियम पेक्टेट के लेयर को डाइजेस्ट करना होगा, तो पेक्टिनेज एंजाइम की जरूरत होगी। तो उसके बाद क्या होगा कि जो नेकेड प्रोटोप्लास्ट होगा, दैट इज सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म के अंदर वाला कंपोनेंट्स, तो वो सारे कंपोनेंट्स को क्या बोला जाएगा यहाँ पर, प्रोटोप्लास्ट। तो दो वैसे सेल्स के प्रोटोप्लास्ट को कंबाइन कर दिया जाएगा, तो दोनों के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और जो साइटोप्लाज्म है सब कुछ कंबाइन कर जाएंगे। तो उसके बाद जो एक हाइब्रिडाइज्ड पार्ट बनेगा, दैट इज कॉल्ड एज सोमैटिक हाइब्रिड। तो वहां पर दो तरीके से क्रिएट किए जा सकते हैं, कुछ एथिलीन ग्लाइकॉल केमिकल्स की मदद से या कुछ नाइट्रेट्स की मदद से, जो अदर अदर केमिकल्स होते हैं उनकी मदद से दोनों को फ्यूज कराया जा सकता है। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स पढ़ने हैं। पोमैटो जो कि पोटैटो और टोमेटो के सेल्स को कंबाइन करके बना, अदर इज बोमैटो जो कि ब्रिंजल और टोमेटो के सेल्स को कंबाइन करके बना। सो दीज आर द कॉमन एग्जांपल्स। इसके अलावा और भी ज्यादा एग्जांपल्स हैं, जैसे पोटैटो के साथ चिली एंड अदर थिंग्स को भी कंबाइन किया गया, बट दोज वर नॉट दैट सक्सेसफुल. So this was the very brief summary of tissue culture. I am not going into any details of this section since it is a very easy chapter and इस chapter में आपको जो main चीजें हैं वो directly NCERT से ही पढ़नी है. NCERT के बाहर इस chapter में हमने बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ाई नहीं किया है and that is why because इस chapter से NCERT से बाहर बहुत कम ही questions आए हैं और इन्हें समझने के लिए बहुत ज़्यादा deep में जाने की ज़रूरत नहीं है. So hereby we have completed this chapter and this was the last topic, that is somatic hybridization. So if you think